For today's class is second topic है. That second topic is decline of Mughal Empire and EIC, East India Company. Clear? Chapter number है 2. Chapter 2. Chapter 2 is decline of Mughal Empire. Decline of Mughal Empire and British EIC. This is the most important topic in your entire Cambridge O-level Pakistan studies paper. Most important chapter. G online students, is it clear? This is the most important chapter. important. Clear? Why I Sir? believe that this is most important? Yes, beta. सर ये जो Yes. हम इधर करते हैं हम खाली डिक्लाइन करते हैं लेकिन बुक में मतलब सारा डिटेल में गिवन है हर मुगल एम्परर का नहीं, वो डिटेल में नहीं, आपके कोर्स में सिर्फ कॉजेज ऑफ डिक्लाइन है. आपके कोर्स में जो है वो बेटा कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इज द ओनली पार्ट व्हिच इज इन योर सिलेबस. सर ऐसे बुक सर बुक Yes, पढ़ने का बेटा. कोई फायदा तो ये क्या इसका कोई काम नहीं होता असल में. यस बेटा, मुगल एरा क्या? Umar, would you please ask again? Sir, I am asking that the Mughal era, the whole of the Mughal era that we study in the school, isn't it worth anything? No, this is not part of your syllabus. Basically, the thing which is included in your syllabus is decline, causes of decline of Mughal Empire. That is only the syllabus. बाकी जो चीजें हैं, these are just the additional details. वो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, because there will be no such question related to the Mughal Empire in your paper. Clear? Okay, जो आपके पेपर में आएंगे वो सिर्फ decline आएगा. So बेटा, causes of decline are divided into, now we are starting with causes of decline. Causes of decline, we usually do things into two parts. No. Decline is divided into two parts. Number one is called decline during Aurangzeb era. During Aurangzeb era. Aurangzeb era. Decline during Aurangzeb era. after Aurangzeb. And the number two is decline after Aurangzeb. ठीक है? So you're following the reign of Aurangzeb. Is it clear, beta? Decline during Aurangzeb and decline following the reign of Aurangzeb. Is it clear, beta? सही. Done, everyone? Yes, sir. Okay. So decline following the reign of Aurangzeb. Done, everyone? Is it clear? अब बेटा, decline during Aurangzeb era's time period is 1660 till 1707, and decline after Aurangzeb 1707 till 1857. Now, actual decline caused in which time period? Following the reign or during the reign? When did the actual decline took place? After the reign of? After or following the reign? Following mean after the reign of Aurangzeb. A bit of decline of during Aurangzeb, this topic will be covered in this class. Only this portion will be covered in this class. Is it clear? Aurangzeb's time period was divided into multiple problems. Number one, the biggest problem was, yes, very good, the religious policy of Aurangzeb.
वो जिजिया टैक्स Yes. वगैरह। Yes, beta. Religious policies of Aurangzeb. Yes, beta. What is the meaning of what are the main religious policies? बेटा सबसे मेन रिलीजियस पॉलिसीज कौन कौन सी थी? व्हाट वर द मेन सर रिलीजियस जिजिया, पॉलिसीज? सर जिजिया टैक्स। यस बेटा, री imposition of jizya tax, of jizya tax. सर This हम was ये the देख first. सकते हैं Yes बेटा. सर कि जी इसके टाइम में सेक्टेरियंस ये शिया सुन्नी बहुत बढ़ चुका था औरंगजेब के टाइम में। अच्छा, अब शिया सुन्नी का भी हम लिख सकते हैं, लेकिन री इम्पोजिशन ऑफ जिजिया वाज कि बेटा जिजिया टैक्स वाज applied on those people who were non-Muslims and they wanted to live in Muslim state. और जितने भी हिंदूज थे, because Mughal Empire was Muslim Empire, so that's why it was imposed on those people who wanted to live in the Muslim Empire, Muslim state. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इधर क्लियर बेटा? अब हुआ क्या था औरंगजेब के टाइम पीरियड के अंदर री इम्पोजिशन ऑफ जिजिया, हाउ दैट हैपेंड कि अकबर, yes, it was abolished बाय अकबर, by Akbar, and Hindus were not paying from last 100 years in India. अकबर ने बेटा जब खत्म किया तो उसके बाद 100 साल, तकरीबन 90 साल बनते हैं, रफली 90 इयर्स आर देयर, तो तकरीबन 90 इयर्स हिंदूज ने इसको पे नहीं किया। जब उसने रीपोज किया तो उसके पीछे लॉजिक या रीजन क्या था कि हेंस री एप्लीकेशन, जब अकबर ने इसको री इम्पोज किया, हिंदूज फेल्ट इट एन इकोनॉमिक बर्डन। हिंदूज ने क्या फील किया बेटा? हिंदूज फेल्ट इट एन इकोनॉमिक बर्डन। Yes, beta. When Aurangzeb restarted, it was considered as economic burden, number one. Secondly, it was considered as economic burden, number one. After economic burden, it was considered as a step to forcefully convert Hindus as a Muslims. So step to convert Hindus, step to convert Hindus into Muslims, and it broke alliance of Hindus with Mughal Empire. Hindus with Mughal Empire. आपको पता है अकबर जो था, he was very very secular person. अकबर जो है उसकी एक मिसिस भी जो है वो हिंदू लेडी थी, राजपूत लेडी थी। हर नेम वाज सर वो उसने तो कोई वो दीन इलाही, सर वो दीन इलाही भी उसने कोई बनाया था ना अपना? जी बेटा, उसका नाम था जोधा अकबर। क्या नाम था उसका? जोधा अकबर इज ए मूवी एज वेल। तो ये जोधा अकबर जो है ना, ये अकबर की एक मिसिस थी जोधा, ही वाज राजपूत लेडी। जोधा अकबर इज ए वेरी फेमस मूवी। तो जोधा अकबर जो है ना, इस मूवी में जो है वो इसमें दिखाया गया कि अकबर ने किस तरीके से एक हिंदू लेडी से शादी की और ये मुस्लिम कन्वर्ट नहीं हुई थी, और उससे शादी करने के बाद हिंदूज जो है Hindus became the friends of Mughal Empire because now Hindu lady was in the Mughal court. वो क्वीन बन गई थी। इस्लाम में अलाउड है, लेकिन मुगल अकबर के नजदीक इट वाज अलाउड। ठीक है, अकबर ने इसको कहते हैं कि अकबर मेड मैट्रिमोनियल अलायंस। क्या बनाया था? मैट्रिमोनियल अलायंस। शादी के जरिए हिंदूज को अपना फ्रेंड बना लिया। अब इससे क्या हुआ?
हिंदूज कितने परसेंट लोग थे इंडिया में? हाउ मेनी हिंदूज पॉपुलेशन कितनी थी? अगर इंडिया में 100 बंदे हैं तो 70%। उसमें तकरीबन 76% के करीब हिंदूज थे उसमें। इज इट क्लियर? सर तो अगर लेकिन जब सर ये रीजन जब इंडो पाक होता था तब तो मुसलमान ज्यादा थे, तो नहीं, जब इंडो पाक रीजन था तो बेटा हिंदूज ही ज्यादा थे, मुस्लिम कभी भी ज्यादा नहीं हुए इसमें। नो सर, ठीक है, मतलब इतने कम तो नहीं थे ना मुसलमान मुस्लिम जो इतने थे। ही कम थे, बिल्कुल इतने ही कम थे। ओके मुस्लिम सर। का तादाद जो थी वो तकरीबन 16 to 17% थी, बाकी और कम्युनिटीज थी। इज इट सही है, क्लियर? सही है। अब बेटा जी, तो अब यहां तक, अब ये देखें कि इससे क्या मुगल एम्पायर वीक हुई री इम्पोजिशन ऑफ जिजिया से? अब मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई है। तो व्हेन औरंगजेब री इम्पोज जिजिया, तो वर द हिंदूज हैप्पी विद दैट पॉलिसी? नो। तो जब आपके 80% या 75% लोग आपके एम्पायर में आपके अगेंस्ट हो जाएं, तो फिर क्या होता है? आपके एम्पायर में यूनिटी है? Was there unity? Was नो there सर। strength in the empire? No. तो इसमें क्या है कि hence, इस पे आगे लिखें कि hence this policy weakened Mughal empire. Apart from that, in the religious policy, there is one more blame on Aurangzeb. What was another blame on Aurangzeb? He destroyed सर वो टेंपल्स Hindu, डिस्ट्रॉय किए थे सर। yes, Hindu temples. He destroyed Hindu temples and discouraged सती। Hindu traditions like सती। इन सारी चीजों को, सती क्या होती है? सती when सर वो जो विडो विडो को burning जला of देते हैं। widow burning of widow यस along the husband after the death of husband. जब किसी हिंदू रिलीजन में किसी औरत के हस्बैंड की डेथ होती थी तो उसके साथ ही उसकी वाइफ को भी बर्न करते थे। दैट वाज सती। तो सती जो है वो अकबर ने, औरंगजेब ने बैन कर दी। फिर इसके अलावा he did not only introduce policies regarding Hindus only, he also discouraged Shia Islam। यस। यस, इसने जो भी शिया थे इसकी एम्पायर के अंदर, ही मोस्टली many Shia scholars were assassinated by Akbar, even सर वो लखनऊ में से by Aurangzeb. Even the friend, the brother of Aurangzeb दारा was शिकोह। Dara सर वो भी Shikoh. किया था ना। He was Shia. दारा शिकोह जो है उसके भाई का नाम दारा शिकोह है। He was brother of Aurangzeb. Aurangzeb killed his brother because he was Shia Muslim. Is that clear? नो सर वो तो ऐसे So, ही सजेस्ट नहीं मारा था, वो तो तख्त की वजह से उसे बेटा अपने भाई थ्रोन की। नहीं, पीछे पीछे जो मेन रीजन थी दैट वाज शिया इस्लाम एज वेल, बिकॉज ही वाज सपोर्टेड बाय द पर्शियन रूलर्स। सफविद एम्पायर उसको सपोर्ट यस सर। है। सर तो सफेद के साथ फिर इसके ताल्लुकात खराब नहीं हुए थे औरंगजेब जी के? बेटा, खराब हो गए थे बिल्कुल। सही। अब therefore strict religious policies brought disunity in empire, and many people या many groups rebelled against these harsh policies. Yes, online students, बेटा बाकी सबको क्लियर है? Yes, that was also, there were so many things related to his. Basically, there was a huge book of more than 1000 pages which was called फतावा आलमगीरी। फतावा आलमगीरी के अंदर 1000 से ज्यादा चीजें थी जो
मेंशन की गई थी, जो कि रिलीजियस ट्रेडिशंस का पार्ट थी, लेकिन आपके सिलेबस में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? सलमा सर अस्सलाम ऐसे वो वालेकुम। काम आएगी? यस बेटा। सर वो बुक हमारे मतलब कोई काम आती है कैम्ब्रिज में? नहीं नहीं, आपके कैम्ब्रिज के लिए दैट इज नॉट इन, दैट इज मोर देन योर सिलेबस बेटा। उससे बेहतर है कि आप अपने सिलेबस पे ज्यादा फोकस करें, आपकी पूरी बुक उससे कम है। जी ओके सर। करीम बेटा, इज इट क्लियर? शेरदिल, शेरदिल क्लियर है? जी सर। ये रुबाब के नाम से बेटा कौन है? रुबाब, यस, हु इज विद द नेम ऑफ रुबाब। अच्छा, नेक्स्ट, यस बेटा, यस करीम, Can you please share the screen again? यस बेटा। Can you please share the screen again? I can't see. अच्छा, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, यस, कैन यू सी नाउ? Yeah. Okay, after religious policy, there is one question which can be given, 7 marks question which can be given on religious policy. Yes, beta. 7 marks question on the religious policy is, why was jizya policy imposed by, opposed by Hindus? Why was jizya policy opposed by Hindus? Yes, online students. एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया, यस। मुस्लिम्स के ऊपर तो बेटा जिजिया हो भी नहीं सकता था, यस बेटा। एक रीजन है कि री इम्पोजिशन बाय औरंगजेब व्हेन अकबर banned it in last century. So because it was ended by, सर वैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये स्टेप जायज था? बेटा ये स्टेप इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जायज नहीं बनता। अगर सर आप ये क्योंकि देखें, जो इंडिया वो तो हिंदूज का मतलब लैंड तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, it was ended by Akbar. So when Aurangzeb reimposed, it was considered as financial burden. It was considered as फाइनेंशियल बर्डन। ये तो एक रीजन बन गई आपकी बेटा। और दूसरा रीजन क्या है, आप लोगों ने अभी बताया था, इट वॉज ए स्टेप, Hindus believed it was a step to forcefully convert them into Muslims. Step to convert Hindus forcefully into Islam, इस वजह से उन्होंने अपोज किया। और थर्ड रीजन इसकी क्या होगी? व्हाट वाज द थर्ड रीजन ऑफ इट्स opposition? The third reason of opposition was कि jizya was paid by those non-Muslims who were living in any other area, but they relocate themselves into a Muslim state, so then they were allowed to pay jizya. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। इंडिया में सबसे ज्यादा किस रिलीजन के लोग रहते थे? हिंदुइज्म के। हिंदुइज्म सबसे ज्यादा था। देयर वाज मोर हिंदुइज्म इन इंडिया। इंडिया में मुस्लिम्स जो हैं वो माइनॉरिटी में थे। ऑल्दो मुस्लिम्स वर रूलिंग, मुगल एम्पायर वाज रूलिंग इन द सब कॉन्टिनेंट, बट दे वर माइनॉरिटी। वो कम लोग थे, मुस्लिम्स बहुत कम थे। तो हिंदूज कहते थे कि अगर तो मुस्लिम्स, हम किसी मुस्लिम स्टेट में जाके खुद सेटल होते तो तब जिजिया अलाउड था, वरना अलाउड नहीं। और इस्लाम में भी यही है कि व्हेन मुस्लिम्स, हिंदूज या नॉन मुस्लिम्स फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड
are coming to settle in a Muslim state, then they are supposed to pay jizya, otherwise it is not. तो Hindus ने कहा था कि it is discriminatory. Hindus called it discriminatory. Yes. और जो इसके टाइम सर Yes बेटा. सर जो क्रिश्चियंस आए थे ये इसी के उनके ऊपर ये जिजिया लगा था या खाली बेटा वो उन्होंने इनसे जिजिया लिया होगा, तवान लिया होगा, उन्हें वो देते नहीं थे. गोरे जो है ना, गोरे पैसे देते नहीं थे बेटा, वो लेते थे हमेशा. अच्छा ऐसे ही है ना, गोरों का Yes. काम पैसे लेना होता है, गोरों का काम पैसे देना कहाँ पे होता है बेटा. यस डन एवरीवन. सो बेटा जिजिया जो है ना, ये एक ऐसा टैक्स है जो इस्लाम में होता ही सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पे है. नॉन मुस्लिम्स को एक मुस्लिम स्टेट में रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता है, विच इज कॉल्ड जिजिया. अब नहीं होता, ये प्रॉफिट के टाइम पे था, ये अब नहीं पे करते, लेकिन पहले ये होता था कि दे वर सपोज्ड टू पे. सर ये उमैयद के टाइम पे आया था ना? नहीं बेटा, ये होली प्रॉफिट के टाइम पे भी उसकी कुछ अच्छा जो खैबर में हाँ. जो लगा खैबर में जैसे ज्यूज थे, तो वो ज्यूज में ट्राइब्स जो हैं वो पे करते थे, उनसे जिजिया लेते थे. ठीक है. Hindus called discriminatory because India was land of Hindus. India was land of Hindus. India was land of Hindus. Is it clear, everyone? G online students, is it clear? Done, beta? Yes, sir. Should we move to the next point? The next point is religious policy के बाद expansion policy of Aurangzeb. What was the policy? Expansion policy of Maratha Empire. yes, expansion policy of Aurangzeb. That also caused the decline of the Mughal Empire. वो कैसे डिक्लाइन कॉज किया? हाउ द एक्सपेंशन कॉज द डिक्लाइन? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट फ्रॉम द मैप. यस बेटा, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब आलमगीर, मुस्लिम एम्पायर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मुस्लिम एम्पायर इन द वर्ल्ड. ये देखें, करंट डे में अगर आप इस्टेब्लिश करें, करंट डे में the area, ये पिंक एरिया जो है in the map is basically the map of Mughal Empire. अगर करंट डे में हम काउंट करते हैं, in the current day अगर आप इसको काउंट करें तो पाकिस्तान पूरा, इंडिया पूरा, अच्छा ये पूरा अफगानिस्तान का भी कुछ रीजन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इवन पर्शियन एम्पायर का कुछ पार्ट, ये सारे अगर आप देखिए, इवन बेटा भूटान और बर्मा का भी कुछ पार्ट जो है, दैट वाज पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर. मतलब आज आप देखें 1 2 3 4 5 कंट्रीज जो आज करंटली 5 कंट्रीज हैं, जिनके पास मोबाइल है वो बंद करें ना तो फिर 5 कंट्रीज का पता चलेगा. तो 5 कंट्रीज जो है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, ईरान का ऑल पार्ट ऑफ ईरान, बांग्लादेश, ये सारे एरिया को मिलाएं, देयर वाज वन एम्पायर, दैट वाज. सर ईरान इसमें नजर तो नहीं आ रहा ना मैप में? ईरान का नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो बलूचिस्तान का पोर्शन था, इस जगह पे ये बॉर्डर का एरिया, ये पाकिस्तान सर जो खुरासान का रीजन है, या खुरासान का रीजन. यस ओके सर. इज इट क्लियर बेटा? सो एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब में क्या हुआ, इसने ये ना पूरी जिंदगी वॉर्स लड़ता रहा. ही वाज ए वेरी गुड वॉरियर. यस, अब इतने ज्यादा वॉर्स की इसने कि इसकी आर्मी एग्जॉस्ट हो गई. अब देखिए सर तो खुद भी लड़ता था यार. बस आर्मी को काम कूल रहना चाहिए, आर्मी को ट्रेनिंग करनी चाहिए. देखिए आर्मी अगर हर वक्त लड़ती रहेगी, व्हेन आर्मी इज फाइटिंग फॉर द होल ईयर्स, फॉर 25 30 35 ईयर्स, व्हाट विल हैपन? आर्मी क्या करेगी? एग्जॉस्ट हो जाएगी. आप अगर पूरा दिन, मैं कहूँ कि आपने बेटा पूरा दिन पढ़ते रहना है, तो आपके 1 घंटा 40 मिनट नहीं पढ़ने होता बेटा, यहाँ पे तो एग्जॉस्ट कर जाते हैं ना. तो आर्मी बहुत ज्यादा लड़ाइयां करती थी, तो इस वजह से वो थी. खैर, अब हम देखते हैं एक्सपेंशन पॉलिसी में इसकी एक है दक्कन पॉलिसी,
दक्कन पॉलिसी, एक्सपेंशन पॉलिसी में दो पॉइंट्स हैं। दक्कन पॉलिसी ये थी अगेंस्ट मराठास, पेशवाज ऑफ पुणे। मराठास लेड बाय शिवाजी। मराठास को कौन लीड कर रहा था? शिवाजी। शिवाजी। बेटा मराठास वर लोकेटेड इन साउथ इंडिया। अगर आप ये इंडिया के सेंटर में खड़े हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ इंडिया। बेटा ये माइक किसी का ऑन है, माइक किसी का ऑन है बेटा, ठीक है। अगर ये वाली जो साइड है ना, दिस इज साउथ इंडिया। इस साइड में पूरे मराठास थे, इस एरिया में मराठास थे। मराठास के खिलाफ साउथ इंडिया में ही fought 25 years in South India to defeat Marathas। और यहाँ पे कुछ शिया किंगडम्स भी थे, गोलकंडा शिया किंगडम था, उनको भी हराने के लिए दक्कन के अंदर औरंगजेब जाता था। शिया जो किंगडम से ना, औरंगजेब के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि अकबर वाज अगेंस्ट शियाज एज वेल। तो वहां पे जो शिया किंगडम्स थे कुछ, उनको भी हराने के लिए ये गोलकंडा वगैरह के अंदर, ये गोलकंडा इस जगह पे, ये गोलकंडा के अंदर शिया किंगडम था। तो इसको हराने के लिए कौन जाता था? औरंगजेब अपनी आर्मी को सेंड कर। यस, हाँ हाँ, ये ऐसे ही चलता है बेटा। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। सर ये पॉलिसी तो इस्लाम में नहीं है ना? बस इसको लगता था ना कि जो कुछ मर्जी हो, उसके भाई के खिलाफ था तो उसने करता था उसके खिलाफ। सो साउथ इंडिया में थी। however he could not completely control, as Shivaji established his kingdom just after death of औरंगजेब। अब वो जो 25 साल औरंगजेब लड़ा, मुझे बताएं जो 25 साल औरंगजेब 25 years he fought against मराठास, तो क्या उसका कोई फायदा हुआ औरंगजेब को? उसके मरने के ठीक 4 महीने के बाद जो है उसकी एम्पायर, मराठा एम्पायर बन गई, साउथ इंडिया डिसइंटीग्रेटेड। क्लियर? सो देयरफॉर सर बाजीराव वन इसी के टाइम पे था पेशवा? यस बेटा, नहीं इसके पेश वो उसके बाद आया था बेटा। बाजीराव वन जो है वो 1730s के करीब आया था। सर तो एक्सपेंशन फिर वो उसने की थी? यस बेटा, ही जी बेटा। दक्कन पॉलिसी क्या थी? व्हाट वाज दक्कन पॉलिसी? तो इसमें देयरफॉर ही वेस्टेड मनी एंड एग्जॉस्टेड मिलिट्री। तो क्या इन दोनों चीजों से मुगल एम्पायर वीक हुई? यस बेटा। वाज द मुगल एम्पायर weak after that policy? Yes beta. Deccan policy can be given as 4 marks question in the exam as well. Deccan Wars भी इनको कहते हैं। Deccan policy is also called Deccan Wars. Yes beta. Online students, is it clear beta? Is it clear everyone? Farid, Kareem, Sherdil, Minal, Musa, yes sir, yes sir, Alma, yes Umar, Rena. yes sir. जी बेटा। Now we are moving towards next thing. Deccan policy के बाद इसकी पॉलिसी है NWFE पॉलिसी। NWFE पॉलिसी सर ये अब्दाली एम्पायर के खिलाफ थी ना? अब्दाली तो बेटा अभी पैदा भी नहीं हुआ था यार इस टाइम पे। सर तो वो फिर कौन सा था? ये वो शाह वली उल्लाह था जी बेटा। Sir, Shivaji established. Yes, beta. Shivaji established his kingdom just after death of Aurangzeb. Therefore, he wasted
money and exhausted military in the Deccan Wars, nothing else. Deccan War ने मुगल एम्पायर को just weak किया, उससे ultimate result was zero, अंडा result था. Clear? जी, हाँ, थक गयो, पक्की बात है, थक गया ना बेचारा, बोर हो गया यार. क्या सर, हाँ कर रहे हो, कर लोगे, चलो. NWFP किसको कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर Frontier प्रोविंस. province. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. इज इट क्लियर? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्या है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर बेटा ये मॉडर्न डे KPK और ये फाटा का जो एरिया है दैट इज बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. अब औरंगजेब fought wars against Pathans to take over, yes beta, take over Kabul. काबुल को टेक ओवर करने के लिए क्या हुआ बेटा? काबुल को टेक ओवर करने के लिए fought wars. He fought with Yusufzai tribes of Pathans for many years, which further wasted empire's prairie and caused decline in later years. बेटा कुछ लेटर ईयर्स के अंदर डिक्लाइन जो है उसको कॉज किया, दैट वाज अगेन. अब इतना ही आपको इनफ है, इसके ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको मेनली किस पॉलिसी को याद रखना है? डेक्कन पॉलिसी, और दूसरे पे आपने जिजिया पॉलिसी. दीज आर द टू थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड whenever you will attempt the question related to Aurangzeb. जी Sir, ऑनलाइन स्टूडेंट, is it clear to all of you? sir, Yes. सर ये NWFP का जो रीजन था इस टाइम पे इधर कोई एम्पायर होता था, मतलब अभी किस ये एम्पायर के अंडर was, होता था ये? that was part of Safavid Empire, Persians का ये पर्शियन part. एम्पायर के. Yes, Okay, Persians sir. का भी part था. That was part of Persian Persian Empire. Persians जो है अफगानिस्तान सारा उनके अंडर होता था. हम्म. Number 3, overextended empire and poor administration. This is Akbar was Aurangzeb was a good warrior. I have told you, Aurangzeb was good warrior. Aurangzeb was good warrior. जंग तो वो बड़ी अच्छी लड़ता था, लेकिन he was bad administrator. Aurangzeb was good warrior, but poor administrator. Done, everyone? अच्छा, he was a good warrior but poor administrator. अब इससे नुकसान क्या हुआ एम्पायर को? प्रॉब्लम क्या हुआ कि yes, he appointed his sons who were also inefficient. Therefore, his large empire from
काबुल टू अफगानिस्तान, काबुल टू बंगाल एंड कश्मीर टू, कश्मीर से लेके कहां तक थी, कश्मीर टू मैसूर, ये लास्ट एरिया यहाँ पे इस एरिया तक थी। बेटा ये देखें, मैंने आपको अभी इसको बेसिकली मैंने एरियाज मैप से ही देख के लिखे हैं, मैंने कहीं बाहर से नहीं लिखे। एक साइड पे कश्मीर है, टॉप साइड पे देखें द लास्ट पोर्शन इज कश्मीर, और बॉटम पे देखें लास्ट पोर्शन कौन सा है, मैसूर, और एक साइड पे काबुल है और दूसरी साइड पे बंगाल है। तो मतलब मैंने इस तरह भी एम्पायर का साइज बता दिया और इस तरह भी एम्पायर का साइज बता दिया। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरा मैंने बता दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब एम्पायर इतनी बड़ी थी कि इनएफिशिएंट हो गया, ही कुड नॉट कंट्रोल, हेंस rebellions started which disintegrated his empire, which disintegrated his empire. Yes, online students, is it clear beta? एक और है नंबर 4 पे, extravagance. What is extravagance of औरंगजेब? lavish lifestyle. किताबों में लिखा हुआ है कि औरंगजेब जो है ये तो बहुत गरीब था, ये टोपियां बना के अपनी इनकम जनरेट करता था, ऐसा कुछ नहीं था, ये सब झूठ है। He spent lot सर of, ये कुरान की कॉपी नहीं बनाता था, वो भी झूठ है। हाँ ये सारी बातें बेटा कुरान की फेक है, कॉपी। ऐसी कोई बातें नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है ऊपर, ठीक है। He spent lot of money Okay, sir. on building palaces, जैसे लाहौर फोर्ट के अंदर इसने शीश महल के ऊपर बहुत ज्यादा काम सर करवाया, मॉस्क, ठीक है। सर वो मॉस्क भी बनाए थे ना इसने। And even built mosques, built, yes, expensive mosques. बेटा लाहौर में बादशाही मॉस्क सारी रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। वो सारा रेड सैंडस्टोन कहां से आया था? सेंट्रल एशिया से। इतना महंगा रेड सैंडस्टोन होता है। इसी तरह जो इसने अपने दिल्ली के अंदर अपनी पर्सनल प्रेयर्स के लिए एक मॉस्क बनाई थी, दैट वाज कॉल्ड पर्ल मॉस्क। तो अगर ये इतना ही खुदातर्स आदमी था तो इतनी लेविश किस्म की चीजें, शीश महल जैसी चीजों को, इन चीजों को डेकोरेट करने से बेहतर नहीं था कि अपनी एम्पायर को थोड़ा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता? तो ये नहीं किया। खैर, मॉस्क लाइक पर्ल मॉस्क for personal prayers, is it clear beta? So hence he, yes, his extravagance, yes, extravagance further brought economic depression in empire. So empire बेचारी जो है इससे फर्दर इकोनॉमिकली कोलैप्स करना स्टार्ट हो। डन एवरीवन? नंबर 5, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम, यस बेटा, मनसबदारी सिस्टम। व्हाट इज मनसबदारी सिस्टम? वेरी गुड, यस जी। मनसब इज which word? टाइटल्स। मनसब का मतलब है, इट्स बेसिकली मिक्सचर ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन। मनसब कहते हैं टाइटल को। मेरा टाइटल क्या है?
व्हाट इज माई मनसब? माई मनसब, आप लोग मुझे क्या कहते हैं? सर। सर एहसन मुझे कहते हो। तो ये जो मनसब है, दिस इज माई टाइटल। मनसबदार मुगल्स, देखिए जरा बेटा, माइक म्यूट कर लें एनीवन प्लीज। आई गेस किसी का एक माइक ऑन है। मुगल्स गेव mansab to high rank officers by allotting them जागीर। जागीर कहते हैं वेल्थ को, लैंड्स को। जागीर मनसबदार को क्या दी गई? जागीर दी गई। जैसे मलिक को जागीर दे दी, खान को जागीर दे दी। इस्लामाबाद, जैसे मैं कहता हूं कि इस्लामाबाद जो है इट्स द जागीर ऑफ करीम। करीम की जो है वो जागीर है, ठीक है। अब करीम की जो जागीर है वो इस्लामाबाद है, तो करीम विल look after the administration of Islamabad and she will prepare the army for the help of king from Islamabad. इस्लामाबाद में वो दो काम करेगी, एक तो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगी और दूसरा आर्मी प्रिपेयर करेगी फ्रॉम इस्लामाबाद। तो अब करीम ने जो इस आर्मी प्रिपेयर की थी, शी लेटर ऑन यूज्ड दैट आर्मी अगेंस्ट द किंग टू मेक हर सेपरेट स्टेट। इस तरह प्रिंसली स्टेट्स बनती गई, मुगल एम्पायर टूटती गई। और जैसे ही औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरने के बाद पता क्या हुआ था मुगल एम्पायर के साथ? ये हाल हुआ। मुगल एम्पायर इतनी सी रह गई, ये छोटी सी, ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है। दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, औरंगजेब के मरने के बाद जो लोग हैं उन्होंने औरंगजेब के सक्सेसर्स को इतना धोखा दिया कि सारा इंडिया जो है वो टूट टूट के छोटी छोटी सी स्टेट्स बन गई। नाउ देयर वाज नो मोर मुगल एम्पायर। ये मराठा एम्पायर। सर सर यस बेटा, यस बेटा। सर जो हम लोग जैसे सरनेम के साथ मलिक या खान लगाते हैं, इन्हीं मनसबदार से मतलब इसकी हिस्ट्री आती है। यस बेटा, यही है। मलिक, खान, खान हो गया। ये मनसबदार, ये टाइटल होते थे मनसबदार को मिलते थे मुगल्स की तरफ से, ठीक है। तो मनसबदार misused, yes, their armies and rebelled against kings and even did not pay revenue to the king. किंग इनको कहता था कि आपने पैसा भी तो इकट्ठा करना है ना, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करके मुगल एम्पायर को देना है। तो ये रेवेन्यू कहां पे लेके जाते थे? अपनी पॉकेट्स में डालते जाते थे, ठीक है। पे रेवेन्यू टू मुगल ट्रेड, इज इट क्लियर? हेंस एम्पायर weakened due to negative role of mansabdars. Yes, online students, is it clear everyone? अगर अब मैं एक क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं, सैंपल क्वेश्चन लिखेंगे। जिजिया पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, was the most important reason why he was blamed for the decline of Mughal Empire. He was blamed for the decline of Mughal Empire. Do you agree or disagree? Give reasons.
बेटा, are we supposed to write other reasons besides औरंगजेब in it? हमने कौन कौन सी रीजन लिखनी है इसमें? औरंगजेब को किन किन रीजंस की वजह से ब्लेम किया जाता है? What were the causes during the time period of औरंगजेब? सर मनसबदारी सबसे पहले सिस्टम। क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? पैसा से पहले तो जिजिया, सबसे पहले जिजिया पॉलिसी है, फिर लिंक स्टेटमेंट देके हमने ओके, बाकी अच्छा अच्छा, अली मूसा काजिम, आप मुझे इसका Yes, स्ट्रक्चर sir. बनवाएंगे? यस बेटा, जिजिया Okay, पॉलिसी sir. वुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ. टोटल नंबर ऑफ Yes. पैराग्राफ्स इन 14 मार्क्स क्वेश्चन must be 6 must be 6. 5 reasons and 6 one must be your opinion opinion or judgment. Yes, analysis जिजिया पॉलिसी नंबर 1. फिर इसके बाद क्या Sir, आएगा फिर- अली मूसा? लिंक स्टेटमेंट लिंक स्टेटमेंट आएगी. लिंक स्टेटमेंट में आपने बताना है कि बिसाइड्स औरंगजेब जिजिया पॉलिसी जिजिया There पॉलिसी were- there were also few other reasons due to which for which decline of- Aurangzeb was blamed. yes, For which sir. Aurangzeb was blamed for the decline. What are the other policies of Aurangzeb for which he was blamed? सर मनसबदारी सिस्टम, Expansion policy. Expansion policy. एक्सपेंशन पॉलिसी, वो लेविश Yes. लाइफ ऑफ औरंगजेब, Number 3, yes, beta. लेविश Expansion लाइफ ऑफ policy. Then there is लेविश लग्जूरियस लाइफ ऑफ औरंगजेब, मनसबदारी सिस्टम. इसके अलावा औरंगजेब ने ऐसा गंद क्या मारा कि इसकी वजह से इसको ब्लेम करते हैं हम? सर वही लेविश लाइफ जो थी उस पे इसने बहुत Yes. पैसा खर्च किया था, मुगल Extravagance. इकोनॉमी वाज ड्रेन्ड। एक्स्ट्रावेजेंस. अच्छा, अगर आप इन पॉइंट्स को औरंगजेब के साथ और डिक्लाइन के साथ लिंक नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आपको 7 से 8 नंबर मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे. यू हैव टू लिंक ऑल दीज पॉइंट्स विद द डिक्लाइन ऑफ Decline. मुगल एम्पायर ड्यूरिंग of- एरा ऑफ औरंगजेब। ब्लेम ऑफ औरंगजेब जो है. और लास्ट इसकी रीजन, और इसने क्या किया था बेटा? सर वो जो उसने शिया रिलीजियस पॉलिसीज में जो आपने बाकी लिखवाई थी, में ओवरसाइज्ड एम्पायर. ओवरसाइज्ड एम्पायर, एम्पायर. एंड लास्ट पैराग्राफ मस्ट बी योर ओपिनियन। yes opinion. This is the structure of your answer. Is it clear everyone? यस सर। डन हो गया? चलें जी. Yes. अभी पूरे 50 मिनट पड़े हैं, 40 मिनट पड़े हैं. जी बेटा, 20 पे छोड़ दूंगा. अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू औरंगजेब?